So again, once again, a good afternoon, dear students. Actually, today we focused on the linked list creation. So linked list data structure is most important concept for non-linear data structure implementation. That is tree data structure, graph data structure. It required the linked list. Okay. So why it is linked list is beneficial. This point also will cover in theoretical part. But today we'll focus on what is the concept of linked list is. Okay, that we have seen. Linked list is what collection of element or node connected via link. This point we have seen. Okay, so basically why we are going for linked list, this point I'm revising here. So first of all, this is array. Okay, array is what? Again, array is a linear data structure. Okay, suppose if I want to store total number of element is 5, so मैंने ये array a use किया है. Total number of elements मैंने कितनी store की है? 5 elements I have to store. Okay, तो साइज -1 कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n, सो n -1 दैट इज योर लास्ट लोकेशन. ओके, so सपोज मुझे नेक्स्ट वाले एलिमेंट स्टोर करना होगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टोर इनटू array because array size is fixed. We are not exceed the size of array at a runtime. Okay, that's why this is the drawback of array. That's why here the mention here, no array exceed of a given array, means we are not exceed memory here, so cannot increase the size of an array at a runtime. So this is very important concept. Okay, this everyone should understand. We cannot increase the size of an array at a runtime. So this is a drawback of array, means that's why it is called as a static memory allocation. You have to clear the technical keyword here, that is static memory allocation, and linked list is what? Dynamic memory allocation. Okay, so these 2 points are very important, dear students. Fine. So first of all, basically what it is called as static means जो साइज फिक्स है. लेट्स से एरे की साइज जो फिक्स है, द साइज इज फिक्स ऑफ एन एरे. ओके, सो वी कैन नॉट एक्सीड द साइज एट रन टाइम. सपोज मैंने कितने एलिमेंट स्टोर किए? सपोज इस एरे में, सपोज आई एम स्टोरिंग द एरे एलिमेंट इज 0 1 2 3. ओके, सो हियर आई एम स्टोरिंग दिस वैल्यू. ओके, so here you can understand that this point very clearly, that is if I want to store 10 20 30 40 values I'm storing. If I want to store next location value, I'm not storing because array size is fixed. साइज फिक्स से मतलब कंपाइल टाइम में, स्टैटिक मीन्स व्हाट? वी आर फिक्सिंग साइज एट अ कंपाइल टाइम. जब हम लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं, सपोज इंटीजर ए ऑफ, मैंने क्या बोला? 4. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई एम गोइंग टू स्टोर 4, तो उसकी साइज एक्सीड नहीं कर सकते. दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ array. This drawback overcome by whom? Linked list. So that's why we are going to perform linked list implementation, that is dynamic memory allocation. Size is not fixed, means runtime view can add number of nodes here. Okay, this is the concept that we are going to see previously. I hope everyone clear now till. So this is what our linked list is. That's why we are going to implement the program in linked list. Fine, everyone. So now we focused on the create node function. Okay, so what is the create node function that we need to see here? Fine. Okay, so we have to start the create linked list concept. Okay, so previously we have seen that this is our linked list, is correct? This is first node and this is second node, that is collection of nodes connected via link. Okay, this is what actually the SLL is, singly linked list. Singly linked list means what? There is a two part. First one is data part. Okay, and the next pointer, it gives the address of next node. Okay, so this point we have covered. Okay, so this is our linked list concept. Okay, so we have to create the node of it. Okay, previously we have started. First of all, हमें क्या करना है? Size देना पड़ता है. That we have seen. We have create, let's say, class, name of the class, that is node. Okay, in which उसके कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है. तो फर्स्ट वन इज इंटीजर डेटा. Okay, and the next one is what? This is the pointer. Okay, address of next node means it is a pointer, so it is should be the node star next. Variable pointer name is next. Okay, so this is what it just gives the size of our class. तो class क्या कर रहा है? Size दे रहा है. Node की size कितनी होगी? Suppose 2 bytes for data, 2 bytes for pointer. Please remember that for pointer it required the 2 bytes. So total 4 bytes का box हमें कौन देगा? Class देगा. Okay, this is size. But we have to allocate the memory dynamically. That's why we have seen the create node function.
Okay, so we have seen that function. I'm not recalling whole the function here, I'm just writing here so you can revise this part. Okay, so अभी हम क्या करने वाले, create node function देखने वाले. Okay, so the create node function will be what, node star create node function I'm recalling here. Okay, fine. In which what we have to do here. Okay, so create node function we have started. We have, you can call this function inside the class, outside the class, doesn't matter. Okay, so we are focusing on the concept of it. So in which I'm just showing here, there is two part for memory allocation. So memory allocation we have seen. For memory allocation, ये जो नोड है हमें वो क्रिएट करना है. मतलब क्या, ये जो बॉक्स है, अगेन आई एम रिवाइजिंग, दिस इज रेलवे इंजन बॉक्स. ओके, सो फर्स्ट रेलवे इंजन का बॉक्स जो बनाना है, जो रेलवे इंजन है हमारी, उसका बॉक्स बनाना है. तो बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अलोकेट द मेमोरी डायनामिकली. डायनामिकली मीन्स व्हाट, जैसे हम बोलते हैं डायनामिकली मेमोरी अलोकेट करनी है, मीन्स वी हैव टू अलोकेट लोकेट मेमोरी ऑफ दैट नोड रन टाइम. प्रोग्राम करते वक्त, मतलब रन करने के बाद नंबर ऑफ नोड्स मुझे ऐड करने होंगे, तो यूजिंग दैट फंक्शन वो पॉसिबल है. सो इन सी लैंग्वेज दैट वी हैव सीन यूजिंग मैलॉक फंक्शन, and C++ there is a new operator. Okay, so these two concepts that we have seen already. Okay, I'm just quoting the syntax of it, you can understand. So in C उसका structure कैसे आता है, struct node स्टार, लेट से मुझे न्यू नोड नाम के वेरिएबल को करना है, दैट वी हैव रिवाइज प्रीवियसली. ओके, प्रीवियस practical we have seen these all the point. Okay, but now again I'm revising this part here. Struct node star new node equal to क्या आएगा, struct node star, उसके बाद क्या आता है, malloc, after that size of operator we have to use size of and struct node. Okay, this point we have seen previously. Okay, सो ये कौन से लैंग्वेज में है, सी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी अलोकेट करते हैं. सो ये जो बॉक्स मुझे बनाना है, ये जो बॉक्स रहेगा वो कौन से नाम से, हमेशा नया नोड किस में जाएगा, न्यू नोड नाम के वेरिएबल में जाएगा. दिस इज फर्स्ट थिंग. आफ्टर दैट मैलॉक फंक्शन क्या कर रहा है, मेमोरी अलोकेट कर रहा है रन टाइम. कितनी साइज, जितनी स्ट्रक्चर की साइज है, जितनी क्लास की साइज है, मतलब 4 बाइट्स. कौन से नोड को, न्यू नोड नाम के नोड को. और ये क्या हो गया, टाइप कास्टिंग, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा है. टाइप कास्टिंग मीन्स मैलॉक रिटर्न्स वो है, बट हमें क्या करना है, नोड को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ता है. दिस पॉइंट वी हैव सीन प्रीवियसली. फॉर डिटेलिंग पर्पज यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. ओके, सो दिस इज व्हाट मेमोरी क्रिएशन, वी आर अलोकेटिंग द मेमोरी. मतलब हमारा जो फर्स्ट रेलवे इंजन का जो बॉक्स है वो हम लोग बनाने वाले हैं यूजिंग दिस फंक्शन, और यूजिंग, और इन C++ वी आर यूजिंग न्यू. तो C++ में सिंटैक्स क्या होता है, नेम ऑफ द वेरिएबल, लेट्स से न्यू नोड, दिस इज अ नेम ऑफ द वेरिएबल, इक्वल टू, आफ्टर दैट न्यू ऑपरेटर, एंड हाउ मच साइज, साइज कौन बताता है, क्लास. सो दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ व्हाट, allocating memory dynamically in C++ language. Okay, so C++ में वो बहुत सिंपल हो जाता है. तो ये स्टेटमेंट से हमारा ये बॉक्स बना है. आई होप एवरीवन एग्री विद दिस, ये फर्स्ट वाला बॉक्स. ओके, अभी ये सिर्फ बॉक्स हम लोगों ने बनाया, उसके दो फील्ड से, फर्स्ट वन डेटा पार्ट एंड एड्रेस ऑफ न्यू नोड. ओके, रन टाइम ऐसे बॉक्सेस हमारे बनने वाले हैं. तो ये रन टाइम बनाने का काम किसने किया, मैलॉक आइदर न्यू ऑपरेटर. ओके, अभी रिमेनिंग टास्क हमारा बाकी है. उसमें क्या करना है, डेटा फील्ड डालना है, उसका नेक्स्ट क्या है वो देखना है. ओके, तो अभी जो नेक्स्ट सिंटैक्स आएगा ये देखो. अभी मैम यस यस मैम इंस्टेड ऑफ मैलॉक अपन न्यू फंक्शन भी यूज कर सकते हैं ना, यस न्यू इन कीवर्ड यस यूज कर सकते हैं ना. yes in C language we are using malloc if you are implementing program in C. तो malloc function यूज करना है, and if you are implementing program in C++ then new keyword यूज करना है. What is the difference between these two? Why I'm giving the malloc? मैम पर यूजिंग न्यू कीवर्ड कैसे करना है मैम. यस इसका सिंटैक्स देखो ना, कीवर्ड और उसको फंक्शन बोला है. न्यू ये जो ओपी का जो कीवर्ड है उसके थ्रू ये बॉक्स बनता है. उसका सिंटैक्स क्या है, द सिंटैक्स ऑफ वो नेम ऑफ वेरिएबल. न्यू न्यू नोड क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल. मतलब हमेशा मेमोरी किस में एलोकेट होगी, पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल. ये कौन सा पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल, मतलब यहाँ पे स्टार आना चाहिए. यहाँ पे सिंटैक्स आएगा नोड स्टार न्यू नोड. ओके,
ये नेम ऑफ वेरिएबल, ये न्यू ऑपरेटर, दिस इज सिंटैक्स. यू कैन सी द ऑपरेटर, यू कैन सी द फंक्शन. फंक्शन बोला तो ये राउंडेड ब्रैकेट में नेम ऑफ द क्लास. इट्स अ वेरी सिंपल syntax for creating the memory dynamically. Okay, so this is name of variable, this is new operator, this is a name of class. So instead of that I am writing here or means you can implement the program in C. At that time we have to use malloc function. If you are implementing program in C++, we have to use new operator or new function. ऑपरेटर कब बोलेंगे? जब मैंने उसको राउंडेड ब्रैकेट में नहीं डाला नोड क्लास के नाम को, तो वो हो गया ऑपरेटर. इफ मैंने उसको राउंडेड ब्रैकेट में डाला तो वो हो गया फंक्शन. I hope everyone understand this point. Okay, so according to this statement you can create the box of means हम लोग रन टाइम ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे using these two functions only. I hope now clear now everyone. Any doubt you can ask, no problem. Fine everyone. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट व्यू वी हैव मेक. अभी हमने सिर्फ क्या किया है? बॉक्स बनाया है. बट उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा डालना पड़ेगा. उसमें क्या है? दिस इज डेटा एंड दिस इज व्हाट? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. दिस 2 पॉइंट वी हैव टू डू. आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. तो ये हमें पता है, बट कंप्यूटर को पता है क्या? नहीं. तो कंप्यूटर को क्या पता है? वी हैव टू राइट द कोड ऑफ इट. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर न्यू नोड इक्वल टू, जैसे हमने मेमोरी एलोकेट किया, मतलब मैं अभी फिर से ड्रॉ करती हूँ. दिस इज अवर सिंपल बॉक्स आई हैव रिटन. इसमें डेटा डालना है. तो डेटा डालेंगे कैसे? हमें पहले क्या करना पड़ेगा? सी आउट, एंटर द डेटा. आई एम एंटरिंग द मैसेज हियर. सी आउट, एंटर द डेटा हियर. ओके, फाइन. देन आई एम स्कैनिंग द डेटा हियर. सी इन. कैसे स्कैन करना है? बिकॉज नोड इज हैविंग 2 पार्ट्स. ओके, सो 2 पार्ट्स है उस नोड के लिए. तो इसके लिए 2 पार्ट्स है, तो हमें क्या काम करना बाकी यहाँ पे? सो द फर्स्ट शुड बी व्हाट? डेटा पार्ट. दिस इज व्हाट? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. मीन्स मुझे एक ही पार्ट को एक्सेस करना होगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? न्यू नोड दिस ऑपरेटर. ये क्या हो गया? दिस ऑपरेटर इज करंट. दिस ऑपरेटर क्या करता है? इट एक्सेसिंग द करंट वैल्यू न्यू नोड ऑफ डेटा पार्ट. तो सी इन डेटा जब मैं बोलूंगी, इफ आई वांट टू स्टोर द 10 वैल्यू हियर, तो वो सिर्फ डेटा पार्ट में जानी चाहिए. ओके, एंड अभी ये बॉक्स का नेक्स्ट नल है, ये हमें पता है, बट कंप्यूटर को पता है कि नहीं. सो अगेन वी हैव टू राइट हियर न्यू नोड ऑफ क्या आएगा? न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू null. I hope everyone agree with this. न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल. इसका मतलब है हमने ये पूरे स्टेटमेंट से क्या किया? अगेन आई एम रिवाइजिंग. वी आर क्रिएट नोड फंक्शन हम लोग बना रहे. क्रिएट नोड मतलब हमें फर्स्ट रेलवे इंजन का बॉक्स बनाना है. तो वो बॉक्स बनाने के लिए उसके लिए मेमोरी एलोकेशन जरूरी है, जो हमने सीखा. लिंक लिस्ट क्या करता है? डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन करता है. मतलब रन टाइम हम 100 नोड्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं. तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा. struct node star new node equal to struct nodes are likewise, or using new operator you can allocate the memory. मीन्स ये फर्स्ट बॉक्स बनाया हमने. ओके, लेट्स से एम्प्टी बॉक्स बनाया. फिर उसमें क्या करना है? इट इज हैविंग 2 पार्ट्स, डेटा पार्ट एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. तो यहाँ पे क्या आएगा? एंटर द डेटा. डेटा पार्ट किस में डालना है? ये बॉक्स का नाम क्या हो गया हमेशा? न्यू नोड. तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यू नोड ऑफ डेटा हमने स्कैन किया, फिर उसका नेक्स्ट नल किया. मीन्स वी हैव क्रिएटेड दिस नोड, एंटरिंग द डेटा इनटू इट, एंड उसका नेक्स्ट क्या किया? नल किया. क्योंकि रेलवे इंजन का जो फर्स्ट बॉक्स है, अब तक हमने पूरी रेलवे इंजन बनाई नहीं है. फर्स्ट बॉक्स डब्बा हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या किया? डेटा डाला और उसका नेक्स्ट क्या किया? नल किया. यहाँ तक अपना काम खत्म हो गया. Okay, and I'm giving the function as a return type, that is node star. I'm giving here the return type is node star. So we have to return that node here. I hope everyone clear here. We have to return what? Return new node here. I hope everyone clear that function. ये फंक्शन से हमने क्या किया है वो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. कभी भी देखो फंक्शन को रिटर्न टाइप होता है, इसका मतलब है उस फंक्शन के जो इस फंक्शन को हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं. मैं क्रिएट नोड फंक्शन को एक बार डिफाइन करके रखा है, तो मैं उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकती हूँ. मीन्स आई एम एक्सेसिंग द वैल्यू देयर. ओके, so I hope everyone clear the function of new node or creation of new node.
I hope everyone agree with this. Dear students, I have habit that I am writing all the things in one page, so you might be clear all the points here. Yes, any doubt? Again I am revising. क्रिएट नोड फंक्शन से हमने पहला बॉक्स बनाया है लिंक लिस्ट का। उसका बॉक्स, ये बॉक्स को मेमोरी एलोकेशन देने का काम कौन करता है? मैलॉक फंक्शन करता है, आइदर न्यू ऑपरेटर करता है। तो ये खाली बॉक्स पहले बनाया था हमने, जहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि खाली बॉक्स है, उसका नाम न्यू नोड है, मतलब हमेशा न्यू वैल्यू न्यू नोड नाम की वेरिएबल में जाएगी। देन वी आर स्कैनिंग द डेटा हियर, फिर उसमें डेटा डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सी इन, एंटर द डेटा, डेटा डाला, और उसका फिर क्या करना पड़ेगा? ये पहला बॉक्स है तो उसका नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? नल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द नोड इज हैविंग टू पार्ट्स, डेटा पार्ट एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, और उसका जो कोडिंग है वो हम लोगों ने अभी देखा। वी आर स्कैनिंग द डेटा हियर एंड उसका नेक्स्ट क्या किया? नल किया। I hope everyone clear the create node function. If anybody having some doubt, they can ask the question, no problem. Using. Okay. So basically again I'm revising. We have created first node. Okay. After that हमें क्या करना है? लिंक लिस्ट मतलब नंबर ऑफ नोड्स हमें वाया लिंक कनेक्ट करने हैं। यहाँ पे 10 का नेक्स्ट नल है, वहाँ पे कनेक्ट करना है। देन इसका कनेक्शन यहाँ पे होना चाहिए अप टू द लास्ट नोड। ओके, बट अब तक हमने सिर्फ फर्स्ट नोड क्रिएट किया है। सो फॉर creating the list here, we have to use accept function. Okay, so first of all, first statement here, and always remember that who is the leader of linked list? That is header. हेडर पॉइंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक हेडर हमारा पिक्चर में नहीं आया, मतलब वी कैन से दैट इट इज अ हेड एक्चुअली। ओके, हेड पॉइंटर हम लोगों ने पिक्चर में नहीं लाया। अब तक हमारा कौन है? न्यू नोड ही था। इसका नाम क्या था? अब तक हमने सीखा न्यू नोड। ऑलवेज रिमेंबर दैट, जैसे रेलवे इंजन का मेन लीडर जो है फर्स्ट बॉक्स होता है, सिमिलरली रेलवे इंजन हम बोलते हैं। सिमिलरली हियर लिंक लिस्ट का लीडर कौन है? हेड। हेड कभी जगह से नहीं हिलेगा। वी हैव टू ऑलवेज पॉइंटिंग इट एज अ हेड। इट इज ऑल्सो वन पॉइंटर। ओके, अभी हम लोग देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स मुझे एक्सेप्ट करना है। ओके, सो पहले मैं मैसेज लिख रही हूँ, मुझे ये लिंक लिस्ट में हाउ मेनी नोड्स यू वांट टू एंटर। इट्स आई एम एंटरिंग हाउ मेनी nodes, how many nodes you want to enter. Okay, fine. So this message I am putting. Fine. Okay, so मैंने scan किया. Suppose I want to enter n nodes here. Okay, so I have to declare n here. Fine. After that, okay. Now, how many nodes I am giving here? Means our जितने nodes है उतने boxes बनने चाहिए, इसलिए for loop लगेगा. For I equal to 0, I is less than n, I plus plus. Okay, then we'll start. टिल आई होप नो बडी हैविंग सम डाउट। ओके, सो अभी जो क्रिएट नोड फंक्शन से हमने फर्स्ट बॉक्स बनाया था, मुझे वो एक ही बॉक्स नहीं बनाए, बहुत सारे बॉक्सेस बनाने हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मुझे लिंक लिस्ट में ऐड करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट, आई हैव टू कॉल क्रिएट नोड फंक्शन हियर। ओके, सो क्रिएट नोड फंक्शन जो हमने प्रीवियसली देखा उसको मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा? नोड स्टार, किसमें रिटर्न करते हैं हम लोग? न्यू नोड नाम के वेरिएबल में। अपना वेरिएबल कौन सा है नए नोड का? हमेशा न्यू नोड। तो मैंने उस फंक्शन को कॉल किया। आई होप एवरीवन क्लियर नाउ। ये फंक्शन मैंने कॉल किया है, मतलब प्रीवियसली जो हमने देखी पूरी स्टोरी, ऐसे बॉक्स बनाएंगे फिर उसमें ये डालेंगे, वो फिर से यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो फिर से ये क्रिएट नोड फंक्शन से आपको समझ में आ जाएगा। क्रिएट नोड फंक्शन मैंने कॉल किया मतलब क्या होगा? ये इधर आपने सी प्लस प्लस में किया है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये बॉक्स बनेगा, फिर उसमें डेटा डालो, एंटर द डेटा एंड स्कैन दैट डेटा, और उसका नेक्स्ट नल करो। मतलब पहला वाला बॉक्स हमारा बन गया। और मैंने क्या बोला? रिटर्न न्यू नोड, मतलब जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है वहां पे वो रिटर्न हो जाएगा। तो मैंने फंक्शन को कॉल कहाँ पे किया है? आई एम कॉलिंग द फंक्शन इन एक्सेप्ट फंक्शन। ओके, सो मैंने दूसरे फंक्शन में कॉल किया, मतलब ये बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। आई होप एवरीवन क्लियर नाउ, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस। तो ये 10 यहाँ पे आ गया, उसका नेक्स्ट नल हो गया। आई होप एवरीवन क्लियर दिस स्टेटमेंट। ओके, अभी देखो इनिशियली अभी हेड को मैंने अब तक ये डायग्रामेटिकली हम लोग असाइन कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने हेड यहाँ पे लगा दिया, बट वी आर नॉट राइटिंग एनी कंसेप्ट अबाउट हेड। सो इनिशियली ऑलवेज रिमेंबर दैट इन स्टार्टिंग द प्रोग्राम वी हैव टू राइट हियर हेड, जो पॉइंटर है हेड इक्वल टू नल। हेड पॉइंटर क्या है मेरा? नल है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नोड स्टार हेड।
ओके, सो हेड पॉइंटर इनिशियली नल है, उसको मुझे कहाँ पे लाना है, फर्स्ट नोड के उधर लाना है, क्योंकि लिंक लिस्ट का फर्स्ट बॉक्स का एड्रेस हमेशा हेड ही होता है. आई होप एवरीवन agree with this. I have written easily, but we have to write the code of it. Initially head क्या है, इनिशियली हेड क्या है हमारा, नल है. ओके, सो ये मैंने क्रिएट नोड फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे आ गए. इनिशियली हेड क्या है मेरा, हमने फंक्शन में लिखा हेड इक्वल टू नल, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ हेड इक्वल टू नल. बट उसको नल रखना है क्या, वी हैव टू कीप हेड इक्वल टू नल. यस स्टूडेंट, वी हैव टू कीप हेड इक्वल टू नल, नॉट एट ऑल. सो हेड का पॉइंट होना चाहिए जहां पे न्यू नोड है. ये नोड का नाम क्या है हमारा, न्यू नोड, क्योंकि हमेशा नया नोड किस में जाता है, क्रिएट होके नोड न्यू नोड नाम के फंक्शन वेरिएबल में. सो ये इसका नाम क्या हो गया, न्यू नोड, और ये क्या होना चाहिए, हेड. तो इनिशियली हेड नल था, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हेड, हेड में कौन जाना चाहिए, न्यू नोड. मीन्स व्हाट, बोथ आर पॉइंटिंग्स टू द सेम प्लेस. ओके, आई होप एवरीवन एग्री विद दिस पॉइंट. होप एवरीवन एग्री. ओके, हेड क्या बन गया मेरा, न्यू नोड. आई होप एवरीवन क्लियर नाउ. मतलब हेड भी वहां पे पॉइंट कर रहा है और न्यू नोड भी वहां पे पॉइंट कर रहा है. आई होप एवरीवन क्लियर नाउ. अभी हेड नल है क्या, बताओ तो मुझे, हेड इज नल, अपना हेड नल है क्या, प्लीज गिव मी द आंसर हियर. नो. यस, क्योंकि हेड किसको पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड को. अभी हमारा एक एम अचीव हो गया कि लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट बॉक्स है, फर्स्ट डब्बा है, उसका उसको हमेशा हेड ने पॉइंट करना चाहिए. यस, दैट इज ओवर, मतलब अपना हेड अभी नल नहीं है. ओके, सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, सपोज ये इफ है, इसका एल्स में लिखती हूँ, एल्स, और इसको लेट से मैं यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे. ओके, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. फाइन. ओके, अभी देखो मैंने क्या बोला है, हाउ मेनी नोड्स यू वांट टू एंटर, आई से 3, 3 नोड है. ओके, सो फॉर लूप में गए, आई कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा. एन की वैल्यू क्या है हमारी, 3. अंदर गए, पहला वाला नोड क्रिएट किया. ओके, क्रिएट करने के बाद ये बॉक्स आया, बॉक्स में डेटा गया, उसका नेक्स्ट नल हो गया. ओके, अभी फिर से इफ हेड इक्वल टू नल है क्या, इनिशियली नल था, अभी हेड कौन बन गया, न्यू नोड, यहाँ तक आ गए. ओके, अगेन ये फॉर लूप है, मतलब जब तक टोटल 3 नोड्स क्रिएट नहीं होते वो चलता रहेगा. मतलब ये फॉर लूप जैसे मैंने यहाँ पे एल्स के बाद, यहाँ पे देखो मैंने फॉर लूप क्लोज किया है, मान लो यहाँ पे ये एल्स है और यहाँ पे मेरा फॉर लूप क्लोज है. ओके, दिस इज व्हाट, एंड ऑफ फॉर, यू कैन अंडरस्टैंड इट. तो ये मेरा एंड किसका है, फॉर का एंड है. ओके, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब एग्जीक्यूशन फिर से फॉर से स्टार्ट होगा. ओके, सो आई की वैल्यू पहले 0 थी, अभी क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस होने के बाद सेकंड इटरेशन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नाउ, पहले 0 था, अभी आई क्या हो जाएगा, यस, आई की यस, आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 था, अभी सेकंड इटरेशन में क्या होगा, वो प्लस प्लस हो गया ना, आई शुड बी 1. यस, तो अंदर गया, फिर से क्रिएट नोड फंक्शन कॉल हो गया. मतलब क्या हुआ, आफ्टर कॉलिंग दिस क्रिएट नोड फंक्शन क्या हो गया, क्रिएट नोड फंक्शन कॉल किया, मतलब सेकंड बॉक्स बना. एवरीवन एग्री विद दिस, सेकंड बॉक्स बना कि नहीं, ये सेकंड बॉक्स बना. ओके, अकॉर्डिंग टू क्रिएट नोड फंक्शन मैंने क्या किया, फिर से क्रिएट नोड फंक्शन कॉल हुआ, ये क्रिएट नोड फंक्शन कॉल हुआ, फिर से ऐसा एम्प्टी बॉक्स बनेगा, एम्प्टी बॉक्स यूजिंग न्यू ऑपरेटर से बनेगा. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें डेटा स्कैन कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट नल कर रहे हैं, मतलब हमारा ये सेकंड बॉक्स बन जाएगा, दैट इज दिस 20. आई होप एवरीवन एग्री. अकॉर्डिंग टू क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल किया, मतलब वो क्रिएट नोड में जाएगा, फिर से वो बॉक्स को बनाएगा, उसमें डेटा डालेगा, उसका नेक्स्ट नल करेगा. आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. अभी ये क्रिएट नोड फंक्शन से मैंने सेकंड बॉक्स बनाया, उसका भी नाम क्या होगा, न्यू नोड. व्हाई इट इज न्यू नोड, बिकॉज नया वाला नोड हमेशा न्यू नोड नाम की वेरिएबल में आता है, तो ये क्या हो गया, न्यू नोड. आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. ओके, यहाँ तक थे हम लोग. ये फंक्शन क्रिएट नोड फंक्शन कॉल करके हमने सेकंड बॉक्स बनाया था, उसमें डेटा डाला, उसका नेक्स्ट नल किया. आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. ओके, फाइन. अभी देखो, इस पहले वाले का भी नाम न्यू नोड है, इसका भी नाम न्यू नोड है, मतलब सेकंड डब्बा हमारा बन चुका है. अभी ये दोनों में लिंकिंग देना जरूरी है, मतलब 10 का नेक्स्ट कौन होना चाहिए, 20. इसका कोडिंग हमारा बाकी है. ओके, फाइन. नाउ यू रिवाइज. इनिशियली हेड नल है क्या, अभी हेड नल दिख रहा है आपको, हेड इज नल, हेड नल है, दिस इज माय क्वेश्चन. नहीं.
यस, हेड इज नॉट नल, मतलब इफ में जाएगा क्या, वो डायरेक्टली कंपाइलर गोज टू द एल्स पार्ट। ओके, एल्स पार्ट में अभी बहुत सिंपल काम करना है हमें। ये न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको कहाँ कनेक्ट करना है, ये देखो इसका नेक्स्ट न लेना, उसको कहाँ ज्वाइन करना है, यहाँ पे। बट न्यू नोड का नेक्स्ट न्यू नोड हो सकता है, हम कभी सेल्फ लूप नहीं लगाते हैं। खुद को ही ढूंढना है तो खुद को ही सर्च करेंगे क्या, नहीं। देर इज अ डिफरेंट स्टोरी दैट इफ एनीबडी इज मेंटली डिस्टर्ब तो वो ढूंढते हैं खुद को, बट इन लिंक लिस्ट इट्स नॉट पॉसिबल। न्यू नोड का नेक्स्ट न्यू नोड होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। इसका मतलब है हमें इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सेकेंड वेरिएबल हियर, द वेरिएबल इज नोड स्टार टेम्प। मैं दूसरा वेरिएबल ले रही हूँ टेम्पररी करके, टेम्प नाम का वेरिएबल लिया मैंने, उसको मैं क्या कर रही हूँ, एज अ उसको कहाँ पॉइंट कर रही हूँ, हेड को। मतलब अभी देखो इसको कहाँ पॉइंट कर रहा है, हेड को, मतलब हेड भी वहाँ है, वही जगह पे मेरा टेम्प आ गया। अभी बहुत सिंपल है। क्यों मैंने नया टेम्पररी वेरिएबल लिया, आई होप एवरीवन एग्री विद दिस, बिकॉज न्यू नोड का नेक्स्ट न्यू नोड नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा नया नोड किस में आता है, न्यू नोड नाम के वेरिएबल में, जो मैंने सेकंड वाला क्रिएट किया था। इसीलिए मैंने टेम्प इक्वल टू हेड, मतलब हेड जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहां पे टेम्प जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये ऑपरेशन RHS टू LHS होता है। इस राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में जाती है, सिमिलरली हेड की वैल्यू कहाँ जाएगी, टेम्प में। मतलब ये मेरा टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अभी बहुत सिंपल हो गया। अभी क्या स्टेटमेंट आएगा, कैन एनीबडी टेल मी हियर, यस व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर, टेम्प का। अभी बहुत सिंपल है, ये जो एरो है, सिर्फ ये देखो दोनों नोड भी कनेक्ट हो, क्रिएट हो चुके हैं। टेम्प का नेक्स्ट कहाँ जाएगा, न्यू नोड, फिनिश्ड, फिनिश्ड अवर लिंक लिस्ट लॉजिक। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट कौन जाएगा, कौन होगा, न्यू नोड, फिनिश्ड। टेम्प का नेक्स्ट कौन हो गया, न्यू नोड। एवरीवन एग्री विद दिस, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, एग्री। मतलब हमारा सेकंड बॉक्स भी कंप्लीट हो चुका। ओके, अभी हमारा फॉर लूप कब तक चलने वाला है, व्हाट इज द एंड कंडीशन ऑफ आवर फॉर लूप इज 3 नोड। मतलब ये फॉर लूप फिर से ऊपर जाएगा, जो मैंने यहाँ पे एंड किया, सब लोग देखो फॉर लूप को मैंने नीचे एंड किया है, दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, सो नीचे मैंने एंड किया, देखो अभी वो दिख नहीं रहा है बट यू कैन अंडरस्टैंड। एल्स के बाद मैंने फॉर लूप एंड किया है, मतलब फिर से फॉर लूप ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर से वो आई प्लस प्लस होगा, सेकंड थर्ड वाला नोड क्रिएट करेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 3, यस अंदर जाएगा, ये 2, ये 2 इज लेस देन 3, यस अंदर गया, फिर से क्रिएट नोड फंक्शन कॉल होगा। मतलब मैं थर्ड वाला बॉक्स यहाँ पे बना रही हूँ। मैं लिंक लिस्ट ऐसे दिखा रही हूँ, मतलब आई एम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम राइटिंग लाइक वाइज, बट इट शुड बी इन स्ट्रेट वे। ओके, तो यहाँ पे हो गया थर्ड वाला बॉक्स। ओके, अभी क्रिएट नोड फंक्शन सबको पता है, क्रिएट नोड फंक्शन का काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिएट नोड फंक्शन, फिर से ये बॉक्स बनाएगा। ओके, मेमोरी एलोकेशन देगा, उसके बाद डेटा डालेगा, लेट से 10 20, नेक्स्ट वैल्यू है 30, उसका नेक्स्ट नल करेगा। समझ में आ रहा है, क्रिएट नोड का काम खत्म हो गया, फिर से यहाँ पे जाएगा। ईच एंड एवरी नोड के लिए एग्जीक्यूशन बार बार होता है। इफ हेड नल, हेड तो नल नहीं है, इफ में जाएगा क्या, वो नहीं, डायरेक्टली एल्स पार्ट में जंप करेगा। फिर से स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी, एल से। अभी देखो फिर से टेम का अपॉइंट करेगा हेड को, ओके टेम का अपॉइंट कर रहा है हेड को। अभी मुझे बोलो, ये फर्स्ट नोड को सेकंड नोड हमने अटैच किया है, बट ये सेकंड का थर्ड होना चाहिए। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, इसका मतलब है इसका नेक्स्ट कौन बनना, मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए, ये भी न्यू नोड है और ये भी न्यू नोड है, चलेगा क्या, नहीं। इसका मतलब है हमारा टेम्प ट्रैवर्स होना चाहिए। आई होप एवरीवन एग्री विद दिस, टेम्प यहाँ पे लाना चाहिए ना, ये टेम्प इधर है तो वो सेकंड नोड को जाना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या आएगा उसके लिए, दैट इज प्रगति का लाइन नेक्स्ट, दैट इज टेम्प इक्वल टू, क्या स्टेटमेंट है वो, नेक्स्ट जाने के लिए। ये जो टेम्प है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जो फर्स्ट नोड है उसका नाम टेम्प है, वो टेम्प उठा के कहाँ पे जाना चाहिए, सेकंड नोड को, मतलब उसका नाम क्या होना चाहिए, टेम्प। तो ये डायरेक्टली होगा क्या, थियोरेटिकली सब पॉसिबल है, व्हाट अबाउट कोड ऑफ इट, कोड क्या आएगा उसके लिए, तो स्टेटमेंट आएगा temp equals to temp of next, always remember that। ये स्टेटमेंट तो बराबर है, temp का नेक्स्ट न्यू नोड होगा, काम खत्म। temp इक्वल टू temp ऑफ नेक्स्ट, मतलब temp का जो नेक्स्ट है वो temp बन जाएगा। आई होप एवरीवन एग्री विद दिस, जो temp ऑफ नेक्स्ट, मतलब ये temp है, temp का नेक्स्ट कौन है, न्यू नोड, वो क्या बन जाएगा अभी, नया temp। मतलब नया न्यू temp कौन बना मेरा, ये नोड,
दैट इज 20। न्यू टेम्प कौन बना? आई होप एवरीवन एग्री विद दिस। सबको समझ में आ रहा है? ये जो न्यू आपको दिख रहा है, ये जो न्यू है, न्यू कौन बना? ये मेरा नया टेम्प बना। एग्री? ये स्टेटमेंट है टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। बट ये कब तक ट्रेवर्स करना है? इसको बोला जाता है लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल्स। फिर से कब तक जाना है? जब तक उसका नेक्स्ट नल नहीं आता। क्योंकि एक बार नल मिलता है तो उसके नेक्स्ट को हम क्या ज्वाइन करेंगे? ये नोड अटैच करेंगे। मतलब नीचे की लाइन क्या है? अभी तो बहुत सिंपल हो गया। फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। मैंने थर्ड वाला नोड क्रिएट किया यूजिंग फॉर लूप से ऊपर गए। ओके, फिर से क्रिएट नोड फंक्शन कॉल किया। ओके, मतलब थर्ड वाला बॉक्स बनाया। फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। हेड न ले क्या? नहीं, हेड तो स्टार्टिंग के नोड को पॉइंट है, अंदर नहीं जाएगा। एल्स पार्ट में गया, वो बोल रहा है टेम्प इक्वल टू हेड। ओके, मतलब फर्स्ट जो नोड है वो टेम्प बन गया। एग्री? अभी वो बोल रहा है टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको टेम्प बना दे। ये टेम्प है, इसका नेक्स्ट कौन है? 20। तो नया वाला टेम्प कौन बन गया? 20। अभी बहुत सिंपल है, 20 का नेक्स्ट कौन बन जाएगा? न्यू नोड। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू ज्वाइन मीटिंग अगेन फॉर 10 मिनट्स।